Namaskaram again. We have started a series of Mahatab sir, and yesterday we have covered my life from birth to school, preschool, then my 7th standard. There are a lot of stories about 7th standard. I wanted to write a book called 7th standard. So many stories about 7th standard, but obviously this series is not about that. So I'm cutting a lot of pieces in my story so that I'll reach to the Mahatab, and because he's going to come, so we should be ready with what he has done to me and how the whole idea. Many people ask how the idea of Gurukul has come to you and how the courage of establishing something like this has come to you. So it is all gifted by him. And why it is all gifted by him, you will understand it through the story. And whenever I say this, कि बहुत सारे अभी जो नए हमारे जॉइनर्स है, पुराने लोगों को तो मैं एकदम नॉर्मल मामूली इंसान हूँ, बट जो न्यू जॉइनर्स है दे आर लाइक नहीं राम सर आप हमारे इंस्पिरेशन हो, एंड पीपल टेकिंग ब्लेसिंग एंड टेकिंग आशीर्वाद. सो प्लीज डू नॉट मेक मी योर आइडल guru or idol teacher or idol leader. I'm not. I don't have that capacity. और आपने अगर मुझे टारगेट रखा कि ओके दिस इज माय आइडल, तो योर टारगेट इज वेरी स्मॉल, नॉट बाय हाइट बट एज अ पर्सनैलिटी. आई शुड नॉट बी योर टारगेट, आई शुड नॉट बी योर गोल कि आपको मेरे जैसा बनना है. अगर आपने इतना छोटा गोल रखा तो ये जो हमने सीरीज चालू की है स्टोरी बताने की, दैट सीरीज इज नॉट गोइंग टू वर्थ. आपको राम नहीं बनना है. बहुत ही आसान भाषा में बताने का ट्राई कर रहा हूं. आपको राम नहीं बनना है, आपको महताब बनना है जो राम बनाता है, तो वो बनना है. तो आपका टारगेट वो है जो आ रहा है. अगर मुझे टारगेट रखा तो यू विल अचीव इट, आई नो. अगर उसको टारगेट रखा, आई डोंट नो हाउ मेनी लाइफ यू हैव टू टेक टू बिकम दैट वन. So he is at that level. I'm giving you formal training for all this thing. हमारे ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. And he has spoken kindly, lovingly very few times in my life. आधे से ज्यादा टाइम तो चिल्लाया है, डांटा है. But his intention in core was always pure, that I should change. And through story you should understand his lessons. And I want you to become a leader like him, a boss like him, guru like him, and one day you will become God like him. So Mahatab will continue. So those are 2007, my interview story. I told you I was hired in a CA firm, a partnership firm. Then the partnership firm broke, and Mahatab sir called me after a few days and he offered me a job. And I started doing everything as per his instruction. Finding an office, first job. Getting an office ready with a carpenter, another job. Bringing things in the office as a resource manager. I have worked as a resource manager. तो आप लोगों की जितने भी डिविजन्स है, मैंने सारे डिवीजन में काम किया है. तो I have worked as a resource manager. I have worked as a housekeeper. I have worked as an office boy. Under him. Everything is taught by him. And ये सब जब हो रहा था तो I had played a role of HR also. हमारे नंबर ट्री में जो हायरिंग्स हुई है, जो एम्प्लॉय लाए गए थे, तो some of the employee was brought by me through my contacts and they were trained by me. क्योंकि उनको नंबर ट्री क्या है मैं ही बताता था. I was the only employee, I was zero employee you can say. अगर एम्प्लॉय आईडी अगर देते तो मेरा एम्प्लॉय आईडी 0 होना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद आता है. आई वॉज देयर व्हेन ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट देयर. मुझे नंबर ट्री में एनिवर्सरी मेरी हमेशा सेलिब्रेट होती थी 1 जनवरी पे, क्योंकि 1 जनवरी वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग टू महताब सर. 31 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ था. एंड सेकेंडली इमीडिएटली ऑन सेकेंड डे आई हैड ज्वाइन हिम एज अ असिस्टेंट. और नंबर ट्री का एनुअल डे सेलिब्रेट होता है 14 फेब पे. So you can understand 1.5 month there was no number tree. Okay, some of you might think why it is called number tree. So let me tell you that also why it is called number tree. It's a tree of numbers because Mahatab sir
is a true believer of numbers. He always talks in numbers, he thinks in numbers, and he helps people to grow in terms of numbers. And that's the reason we as an organization, we have adopted that as a value chain mechanism, value addition, our value system, our belief system, that wherever we go, we will grow numbers, because tree grows numbers. That's the reason our entity name was Number Tree. Everything has a logic. Our Elite Gurukul logo and Number Tree logo is almost same, with color, with size, and the thing in it little bit different, obviously. So many people think that it's similar or matching. Why is it matching? Matching क्यों है? Because Gurukul came out of Number Tree, तो उसका color, shape, size कुछ तो उसके अंदर होगा ना. So that's the reason we are almost similar organization with our uniqueness. Exact copied नहीं है, but we also help people growing numbers, we help people growing in themselves. तो हमारा भी वही सब टारगेट है. तो few stories I will continue now. महताब सर की अलग अलग spaces की. तो one day what happened, there was a lady working in our office. क्योंकि ये recorded line पे, तो I don't want to name her, but you can call any name that come to your mind. Sujata, Surekha, whatever name come to your mind. One lady is working in our office. आपको पता है ना, महताब सर ने मुझे क्या बताया था कि अगर हमारा ऑफिस होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए. तो हमारे ऑफिस में अटैच बाथरूम था. नाउ द प्रॉब्लम व्हेन यू हैव अटैच बाथरूम एंड ऑफिस इज वेरी स्मॉल, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट क्लीन. क्योंकि अगर वो अच्छे से साफ नहीं होगा तो इट विल स्टिंग एंड इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज मुंबई में ऑफिस छोटे होते हैं. तो ऑब्वियसली आई वाज द वन हु यूज्ड टू कीप इट क्लीन व्हेनेवर इट इज नीडेड. हमारे यहाँ पे ताई थी जो साफ करती थी, लेकिन अगर ताई नहीं आई तभी भी कोई ना कोई तो बैकअप में रह के साफ करना चाहिए. तो आई हैव डन इट मेनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि हमारा ही है तो वी हैव टू, समबडी हैज टू डू इट. तो वन डे दैट लेडी हु वाज वर्किंग विद अस, she went to the washroom and she came very angry out. बहुत गुस्से से वो बाहर आई and she started shouting at me. बहुत जोर से तुमको अक्ल नहीं है, कैसे, एक तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वॉशरूम मेंटेन करना, मैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, बैंक एग्जीक्यूटिव है, लेकिन क्योंकि कोई नहीं था या कोई नहीं रहेगा तो आई यूज्ड टू थिंक दैट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं करता था. तो दैट लेडी थॉट इट इज माई जॉब टू कीप इट क्लीन और कीप इट मेंटेन. तो और वो मैंने किया भी था उस दिन. एवरीथिंग वाज इन प्लेस, एवरीथिंग वाज राइट. ओनली थिंग दैट मैंने उसको पूछा कि हुआ क्या है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो मेरे पे. तो शी सेड व्हेन आई सैट देयर, ऑब्वियसली फॉर डूइंग व्हाटएवर शी वांट्स टू डू, ऊपर से पानी लीक हो रहा है. तो पाइपलाइन जाता है ना ऊपर से, तो जो वाटर कनेक्शन लाइन है हमारा उसमें लीकेज था. एंड दैट लीकेज अनफॉर्चुनेटली इतने सही जगह पे था कि आप नीचे बैठते हो तो आप पे सर पे ही गिरेगा. तो डायरेक्ट आशीर्वाद, ठीक है ना. तो नाउ ऑब्वियसली इट इज इरिटेटिंग एक्सपीरियंस, यू आर डूइंग योर प्राइवेट थिंग्स एंड ऊपर से पानी गिरा. टिप टिप, इट्स नॉट दैट इट्स ड्रेनेज, छोटा पानी, नॉट डर्टी वाटर, नॉर्मल वाटर, जो पाइपलाइन का पानी वही. लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, आप घर से रेडी होके ऑफिस में आते हो एंड देन स्टार्टिंग में ही ऐसा अगर आपका अभिषेकम अगर होगा. तो शी वॉज शाउटिंग एट मी. अब मैं छोटा था ऑब्वियसली ना, मैं मतलब 2007 2008, मैं अभी भी छोटा ही हूं, तो तभी और छोटा था. तो मैंने क्या किया होगा, ये लेडी ने जैसे ही मेरे पे गुस्सा डाउनलोड किया, मैंने उसको अपलोड किया और मुझको भी गुस्सा आया और मैं गया सर के पास फुल फोर्स में. टेबल जैसा उठा, चेयर भी रखे बाजू करके एकदम फुल फायर में, एकदम जोर से उनका केबिन खोला, बिकॉज ही वॉज सिटिंग इनसाइड द केबिन, और बोला वो बाथरूम में लीकेज है, वो मेरे को चिल्ला रहे लोग. अब बॉस है वो मेरा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऐसे तो बात. लेकिन मेरे में मैनर्स ना तभी थे ना अभी है. तो इतना एंग्री अगर देख के, अगर वो मतलब मुझे तो लगता है कि वो जूता निकाल के फेंक के मारना चाहिए था मुझे. बट वेरी कामली, he had that style, okay, very calmly. He was working on the laptop. He will stop. He will take a pause. He'll think for the moment. वो लैपटॉप को थोड़ा ऐसा थोड़ा डाउन करेंगे और मुझे बहुत एकदम कामली बोला, राम
if there is a leakage in the bathroom, then what should we do? क्या करना चाहिए हमको? मैंने बोला प्लम्बर को बुलाना चाहिए। तो सर बोलते तो प्लम्बर को बुलाओ। मुझे क्यों बता रहे हो? डू यू वॉन्ट मी टू गो आउट एंड सर्च प्लम्बर? तो मुझे बताओ, और मैं प्लम्बर लाऊंगा, आप प्लम्बर लाओगे, काम तो वही होगा। तो इंस्टेड ऑफ कमिंग एंड टेलिंग मी व्हाट इज द प्रॉब्लम, गेट द सॉल्यूशन। तभी से मेरे लाइफ में आई हैव नेवर गॉन टू हिम विथ एनी प्रॉब्लम, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत ही क्लियरली समझाया था लाइफ में दो तरीके के चैलेंजेस होते हैं। वन, देर आर सॉल्यूशंस टू इट, एंड वन, देर आर नो सॉल्यूशन टू इट। एंड महात्रिया के लैंग्वेज में, जो मुझे बहुत बाद में पता चला, ये सब उधर विजडम नहीं था। प्लीज अगेन, मुझे तभी बोला प्लम्बर मैं ही ढूंढू प्लम्बर। अरे कौन? तो मैनेजिंग डायरेक्टर जाके प्लम्बर ढूंढेगा? किसी को तो ढूंढना पड़ेगा ना प्लम्बर। तो सर ने मुझे बताया था उस दिन, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन हैव अ सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम दैट देयर इज अ नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उन्होंने ये भी बताया था, द प्रॉब्लम विच डज नॉट हैव सॉल्यूशन इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम, इज जस्ट अ सिचुएशन। बारिश बहुत हुई, प्रॉब्लम है क्या? फ्लड आ गई आज गडिंग्लज में, क्या करेंगे? प्रॉब्लम है? इज जस्ट अ सिचुएशन। क्या कर सकते हो आप उसका? व्हाट कैन यू डू? नथिंग। तो क्या गाली देंगे, एक दूसरे के ऊपर छीकेंगे? एक्सेप्ट करेंगे ना। तो महात्रेय के भाषा में हम बोलते हैं एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, एक्सेप्ट दी। तो यहां पे भी बहुत सारी चीजें दैट यू कैन नॉट चेंज। देयर आर पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट वांट टू नेम देम, but they always create some kind of drama for us. Accept the unchangeable. You just have to accept. ये ऐसे ही है। Second, change the changeable. जो चेंज हो सकता है उसको चेंज करो। तो बाथरूम में अगर प्रॉब्लम है तो प्लम्बर को बुलाओ और ठीक करो, क्योंकि उसका सॉल्यूशन है। और जिस चीज का सॉल्यूशन नहीं है वो प्रॉब्लम ही, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता जिसका ह्यूमन इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फाइंड नहीं करे। और जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। अब मोदी पीएम बनने थे, बन गए, क्या ही कर लोगे आप? यू कैन नॉट डू इट। हमारा कोई नहीं, वोट देना था दे दिया आपने, नहीं देना था नहीं दिया, वॉट एवर यू डिस। अभी जो हुआ उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब वी हैव टू बी इन दिस इकोनॉमी। कल इन्फ्लेशन हो सकता है, वॉर लाइक सिचुएशन आ सकती है, घर में डेथ हो सकती है, क्या करोगे? फैमिली में अगर डेथ हो गई तो क्या करोगे? एक्सेप्ट इट दैट दिस हाउ द लाइफ गोज। तो कल ब्रेकअप हुआ तो क्या करोगे? चेंज द चेंजेबल। अरे ब्रेकअप इज नॉट समथिंग दैट इज द एंड, नो, चेंज द। you wanted to love someone, right? That person has changed, you keep loving, someone else will come. तो जो बदल सकता है वो बदल दो, जो नहीं बदल सकता उसका कुछ नहीं कर सकते। So that's the one thing that I wanted to tell you today. Never be problem oriented mind, always be solution oriented mind. आपको अगर आके कोई कुछ बता रहा है तो पहले सुन लो उसका। मेरे में इतने पेशेंस नहीं है, मैं कभी कभी प्रॉब्लम सुनने से पहले ही सॉल्यूशन दे देता। हाँ, समझ रहे हैं ना। मैं सुनता भी नहीं, क्योंकि मैं महताब नहीं हूं ना, मैं राम हूं। मैं अपना है, अपना कुछ ना कुछ है। महताब पूरा सुनता है और देन सॉल्यूशन देता है। उसका एक ही प्रॉब्लम है, उसने सॉल्यूशन देने के बाद अगर तुमने नहीं किया तो ये तुम्हारा गलती है, ये उसका गलती नहीं है। तो आप जब भी उनके पास प्रॉब्लम लेके जाते हो तो हैव एन हार्ट कि अगर उन्होंने कुछ बोला एक्सचेंज में, इफ ही गिव द रिप्लाई, देन यू आर रेडी टू डू दैट। अगर तुमको सॉल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं करना है तो तुम प्रॉब्लम पूछ क्यों रहे हो? समझ रहे हैं ना। तो आपको एग्जाम में पास होना, ही माइट से स्टडी, आप बोलोगे फोकस नहीं है, ही विल से डाउनलोड सर्टन मेमोरी गेम्स। देयर आर गेम्स कॉल्ड मेमोरी गेम्स, ठीक है ना, आते पीपल हैव डेवलप। अगर आपका फोकस और न्यूरल
यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए देयर आर गेम्स कॉल्ड मेमोरी गेम्स विच एक्टिवेट योर मेमोरी। मैंने पूछा है उनको ये सवाल, सर मेरे को ना बहुत सारी चीजें भूल जाती है, आई कांट रिमेंबर द थिंग्स। ही टोल्ड मी देन यू हैव टू प्ले मेमोरी गेम्स। तो मेमोरी गेम खेलो, ठीक है ना। अगर सर मेमोरी गेम खेलना ही भूल गया तो नाउ दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम। तो फिर आजू बाजू वालों को बताओ कि मुझे याद दिलाओ कि डिड आई प्ले मेमोरी गेम टुडे और नॉट। तो आप लोगों के सिचुएशंस को अगर आपको बदलना है, आपके हालातों को अगर आपको बदलना है, तो पहले तो आपको उसके बारे में वोकल होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आप अपने अंदर रखोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि आपको क्या चाहिए। आपके अंदर जो कुछ ऐसी चीजें जो आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, एंड देयर इज सम सिचुएशन दैट यू आर गोइंग थ्रू, you tell her, she is not going to tell anyone, right? So I'm creating both the atmosphere in the organization. One, talkative, open up, क्योंकि आपके आजू बाजू में लोग हैं, शायद उन्होंने वो सिचुएशन अपने लाइफ में कभी ना कभी हैंडल की होगी, तो दे विल गाइड यू। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स का क्वेरी एंड जीएसटी का क्वेरी, प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट कंसिडर मी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन आई एम सिटिंग हियर। सर वो टैक्स कैसे बचाने का वो बताओ, सर वो रिफंड कैसे लाने का। अरे ये बाबा ये नहीं, ये सवाल तुम मुझको कभी भी पूछ सकता है। आई एम टॉकिंग व्हेन वी सिट इन दिस रूम, टॉक क्वेश्चन विच इज फंडामेंटल, मतलब तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को पूछो, ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम क्रिएट करेंगे। एंड नॉट ओनली मी, एवरीबडी। सी समटाइम माई सॉल्यूशन मे नॉट वर्क, समवन एल्स सॉल्यूशन मे वर्क। So you have to be very much vocal about it, what you want, and then people around you should bless you कि okay tathastu, you should get that. So the first lesson done for the day, never be a problem oriented mind, always have a solution oriented mind, change the changeable, accept the unchangeable, then your life will be at peace. मैं क्या करता हूं, कुछ चीजें जब चेंज हो नहीं सकती मैं उनसे दूर चले जाता हूं। दैट एटीट्यूड इज नॉट गुड बिकॉज दैट्स अ गिविंग अप एटीट्यूड ना। मुझे पता है कि आप चेंज नहीं हो सकते, तो मैं क्या कर लूंगा, आपको छोड़ के आपसे दूर हो जाऊंगा टू सेव माई एनर्जी, ठीक है ना। क्योंकि मैं ऐसे, आप मेरे पास सॉफ्ट बन के आओगे तो मैं आपको थोड़ा जल्दी चेंज करूंगा। तो जितना मैं बता रहा है रेजिस्ट करते जाएगा उतना मुझे ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो एक टाइम के बाद मुझे जहां पे फील होता है कि इनफ, देन आई गिव इट अप। ये सही नहीं है, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, राइट। इवन आई हैव टू ग्रो in terms of all these things, in terms of leadership, in terms of teachings. So giving up should not be the attitude. In fact, the hardest nut in this batch, सबसे डिफिकल्ट जो है उसके ऊपर ज्यादा हमको काम करना चाहिए, जो ज्यादा टफ है। जो ऑलरेडी रेडी है चेंज होने के लिए, उसको मैं क्या ही चेंज करूं, वो तो रेडी है, उसको तो खाली टच चाहिए, पुश चाहिए ना। तो विनायक सर्कल बोलेंगे मैं खाली स्मार्टेस्ट किड को पढ़ाएगा तो गलत एटीट्यूड है। यू हैव टू टीच डम्बेस्ट किड, स्मार्टेस्ट किड कैन डू समथिंग एट हिज ओन। तो दिस अगेन शुड बी अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, क्योंकि नंबर ट्री में आई वॉज द डम्बेस्ट किड, पोरेस्ट किड, शेमलेस वन। इनफैक्ट आई यूज्ड टू कॉल माई सेल्फ एनिमल, मैं जानवर है बोलता था सबको, एंड मैं था। जिन्होंने भी मुझे उस पीरियड में फील किया है, मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, यू टॉक टू देम। आप मेरे फोटोज देख लो, पता नहीं कुछ छोटे मोटे बचे हुए हैं। अगर उस टाइम के कुछ आपको वीडियोज वगैरह मेरे दोस्तों के पास किसी के मोबाइल में हार्ड ड्राइव में रहेंगे, मिलेंगे तो पता नहीं, किसी के पास होंगे तो रिकॉर्डेड लाइन में आई एम आस्किंग प्लीज, अगर किसी के पास हमारे पुराने वीडियोज फोटोज होंगे तो प्लीज ट्राई टू शेयर इट ऑन एलिट गुरुकुल, या एलिट गुरुकुल के लोगों से कॉन्टैक्ट करके या मेरे से कॉन्टैक्ट करके। यू विल नॉट फाइंड मी एज अ ह्यूमन बीइंग। अभी भी आपको मुझ में बहुत बार प्राणी दिखता होगा, है एनिमलिस्टिक नेचर है, बट दैट शुड नॉट बी द ह्यूमन नेचर। सदगुरु बोलते हैं वी हैव टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी एवरी डे। तो लेट्स कंटिन्यू महताब। हुआ क्या है, अभी सर के साथ काम करके ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने हो गए हैं। अब तक मुझे उनका कलर शेप, बोलते ना संगत में हम रहते हैं तो आना चालू हो जाता है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था,